Good afternoon, everyone. This is Himani Bali. So, today we'll discuss the next session, that is the session 4 of the PowerPoint presentation. Hope you understand my previous lectures. And today we'll do in this session, we'll do how you edit the text in the presentation. So this is the name of the session, edit text, including font, size, style and color. How you edit your text means आप किस तरह से text means जो भी आप लिखते हैं, you already know what is a text. So जो भी आप लिख रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, इस डॉक्यूमेंट में, तो उसे आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं, किस तरह से चेंज कर सकते हैं. सो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, font size, style and color. I will show you the live demo on the presentation software so that you can easily understand how you edit the text in the presentation. The content we will cover today in this session are here. You can see edit and formatting a slide, how you edit and format means how you make your slide more beautiful. Slide is a page in a presentation, so editing and formatting a slide, it includes the topic एडिंग टेक्स्ट बाय यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स टू अ स्लाइड. किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट को बाय यूजिंग द टेक्स्ट बॉक्स टू अ स्लाइड, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यू इन दिस स्लाइड यू हैव द टेक्स्ट बॉक्सेस विच इज ऑल्सो नोन एज अ प्लेस होल्डर. मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी किस तरह से आपको जो भी ऐड करना होता है आपको उसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही ऐड करना पड़ता है. बट इफ यू वांट टू इंसर्ट मोर टेक्स्ट देन हाउ you will insert the text in the presentation. I will show you here. So in the next topic, formatting text, how you format your text. Format means कि आप किस तरह से अपने text को और ज़्यादा attractive और ज़्यादा beautiful बनाएंगे, beautify करेंगे अपने text को. तो इसके अंदर हम जो topic cover करेंगे वो है to change font face, to change font size, to apply shadow effect, to apply font style, to copy the formatted text effect to another selection. So let's start this session, and for this you have to open the PowerPoint software. So here I'll open this PowerPoint software. It will look like this. Your window will look like this when you open the PowerPoint software, MS Microsoft PowerPoint. So इसे ओपन करने के बाद हमारे पास, आप लोगों को ऑलरेडी मैं आपकी प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ कि ये हमारा टाइटल बार होता है, देन वी हैव अ मेनू बार, देन वी हैव अ दिस रिबन, दिस होल पार्ट इज नोन एज अ रिबन, एंड इन द रिबन वी हैव ग्रुप्स, this clipboard, slides, font, paragraphs, drawings and editing. So we have 1 2 3 4 5 6. In the home tab we have 6 groups in the ribbon. So in the same way, जिस तरह से हम बाकी के टैब पे क्लिक करते जाएंगे, so हमारा रिबन जो है वो चेंज होता जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट टैब हमारे पास उसी तरह के ग्रुप्स अवेलेबल हो जाएंगे रिबन में. सो ये दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द प्रेजेंटेशन. तो मैं हमेशा जब भी अपनी क्लास स्टार्ट करती हूँ तो मैं प्रीवियस थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो इजिली समझ सकता है कि क्या चीज को हम क्या कहते हैं. सो जो मेन टॉपिक हमारा आज का है वो हमारा है कि हमने किस तरह से एडिट करना है अपनी स्लाइड को. स्लाइड इज अ पेज इन अ प्रेजेंटेशन. मैं बार बार यही कह रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है. स्लाइड जो होती है वो हमारे प्रेजेंटेशन में हम अपने सिंगल पेज में, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 2 स्लाइड्स हैं, 2 पेजेस हैं. सो वी कॉल इट अ स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन. सो अब हम इसे किस तरह से एडिट करेंगे. So PowerPoint contains a lot of editing and formatting features which are used to make changes as well as add new effects in an existing slides. They help in enhancing the overall look of a presentation, like changing font, face, size, color, text alignment, line spacing, inserting bullets, etc. While formatting, you can either select the placeholder to select the entire text or select an individual
टेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपने सिलेक्ट करना होता है तो आप या तो पूरा प्लेस होल्डर को सिलेक्ट कर लो, या जिससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और यू कैन सिलेक्ट द इंडिविजुअल टेक्स्ट. ऑलवेज रिमेंबर दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट दैट while formatting जब भी आपको करनी है, the text first select the text and then apply the formatting effects. आपको सबसे पहले क्या करना है, you have to select the text. आपको पता है कि जब तक आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग आप उस पर अप्लाई करेंगे वो अप्लाई नहीं होगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट दैट बिफोर फॉर्मेटिंग यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट. तो सबसे पहले हमने जो अभी का जो हमारा कंटेंट है, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग स्लाइड हम कैसे करेंगे, एडिंग टेक्स्ट विद टेक्स्ट बाय यूजिंग द टेक्स्ट बॉक्स टू ए स्लाइड. अब आप देख रहे हैं मैंने अपनी स्लाइड पे क्लिक किया है, सो यू हैव सीन अ डॉटेड ब्लू कलर का मार्क का जो बॉक्स है, दिस इज नोन एज अ प्लेस होल्डर. ये आपका बॉक्स शो हो गया है, एंड जब मैंने ऊपर देखा, ऊपर क्लिक किया, अगेन यू हैव दिस प्लेस होल्डर. सो वी हैव टू प्लेस होल्डर, टू टेक्स्ट बॉक्सेस हियर. सो प्रेजेंटेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी है, कभी भी आप प्लेस होल्डर के, अगर आप आउटसाइड चले जाएंगे तो आप वहां पे नहीं लिख सकते. देखिए जैसे यहाँ पे कोई प्लेस होल्डर नहीं है तो आपका कर्सर ही वहां पे विजिबल नहीं होगा. सो इट मीन्स कि प्रेजेंटेशन में आपको जो भी लिखना है, इफ यू वांट टू ऐड एनी टेक्स्ट देन यू हैव द टेक्स्ट बॉक्स देयर. तो हमारे पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, सो इट मीन्स कि हम यहाँ कुछ लिख नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम यहाँ पे अपना एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट ना कर लें. टेक्स्ट बॉक्स और प्लेस होल्डर दे बोथ आर द सेम, डोंट बी कंफ्यूज. सो हम किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस इंसर्ट tab. After clicking on this insert tab, you have seen this text group in the ribbon. So here you have this text box. Click on the text box. आपने text box पे click कर लिया है. Now ये देखिए आपका कर्सर जो है वो शो हो रहा है. अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर रही हूँ, मैंने ड्रैग किया. Look at this. तो जैसे ही मैंने ड्रैग किया उसके बाद यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो विजिबल हो गया, एंड अब आप देख रहे हैं कि आपका कर्सर जो है वो वहां पे ब्लिंक भी कर रहा है. लुक एट दिस, आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है. सो हेयर यू कैन टाइप एनीथिंग. अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं. देखिए जो भी मैं टाइप कर रही हूँ वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है. सो अब आपको पता चल गया कि किस तरह से आपका ये टॉपिक कवर हो गया कि किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट को बाय यूजिंग द टेक्स्ट बॉक्स टू ए स्लाइड. अपने स्लाइड में किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स लाना है. तो कैसे लाना है, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन यू हैव द text group. In the text group you have this text box. Click on the text box where you want to insert the text. यहाँ पे जहाँ पे भी आपको insert करना है text, आपको वहाँ पे drag करना है, and then your text box is visible there, and after that you can insert any of the content. ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि किस तरह से. अब आप देखिए, अब आपका यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स आ गया. यहाँ पे भी मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है, बट मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है. चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं. तो आपको समझ आ गया. दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू ऐड द टेक्स्ट बाय यूजिंग द टेक्स्ट बॉक्स टू अ स्लाइड. सो द नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिंग स्लाइड, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. आप किस तरह से फॉर्मेट करते हो अपने टेक्स्ट को. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस होम टैब. देखिए ये होम टैब क्लिक है इसलिए विजिबल यहाँ हो रहा है. होम टैब के अंदर यू हैव दिस फॉन्ट ग्रुप. ये फॉन्ट ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर आपकी ये सारी चीजें आ जाएंगी, सब चीजें कवर हो जाएंगी. तो सबसे पहले आ जाता है टू चेंज द फॉन्ट फेस. फॉन्ट फेस अगर आपने चेंज करना है, रिमेंबर द वन थिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी है कि यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मेटिंग. तो आपको करना क्या है, चलिए मैं एक इंसर्ट कर लेती हूँ, एक नई स्लाइड इंसर्ट कर लेती हूँ. होम टैब में न्यू स्लाइड पे मैं जाऊंगी और मैंने यहाँ पे एक स्लाइड मैंने इंसर्ट कर ली. देखिए मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है स्लाइड. सो मैं जो भी लिखना चाहती हूँ मैंने लिख दिया हेलो, और जो भी आप लिखना चाहते हैं, एप्पल एंड आई एम फाइन, जो भी आपने लिखना था आपने लिख लिया.
देखिए हम इसे फॉर्मेट करेंगे, तो फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है टू चेंज द फॉन्ट फेस। देखिए मैंने फॉन्ट ग्रुप में जाना है, फॉन्ट ग्रुप में दिस इज द फॉन्ट फेस, इसे बोलते हैं फॉन्ट फेस, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करूंगी। देखिए मैं यहाँ पे इस तरह का ये अल्जेरियन लगाना चाहती हूँ, तो मैं क्लिक करूंगी तो आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज आई हैव नॉट सिलेक्टेड द टेक्स्ट फर्स्ट। तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। मैंने सिर्फ आई एम फाइन को सिलेक्ट किया है। नाउ आई वांट टू क्लिक ऑन दिस फॉन्ट फेस बटन, देन अल्जेरियन। लुक एट दिस, जैसे ही मैं चेंज कर रही हूँ, जो भी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ स्टाइल, वो उसी तरह का आ रहा है। दिख गया? सो दिस इज कॉल्ड एज अ फॉन्ट फेस। आप फॉन्ट फेस यहाँ से चेंज करते हैं, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन दिस बॉक्स, दिस इज फॉन्ट फेस। वी हैव लॉट्स ऑफ वैरायटी इन द font face, so you like which one, it depends upon you कि आपको कौन सा पसंद है, आप वही उस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉन्ट फेस आपको पता चल गया कि किस तरह से आप फॉन्ट फेस को चेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज टू चेंज द फॉन्ट साइज। आप अपने फॉन्ट के साइज को चेंज करना चाहते हैं, यानी आपने जो लिखा है आप इसको बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, देन यू हैव द टू मेथड्स फॉर डूइंग दिस। आपके पास दो मेथड हैं। The first one is you have this box where you have specify the number। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, माउस होवर इसको कहते हैं होवर, HOVER होवर। तो आपने यहाँ पे प्लेस किया, सो इसको प्लेस करने से आपके पास वेराइटी ऑफ साइजेस अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो भी साइज आप इसको देना चाहते हैं यू हैव टू सिलेक्ट दैट। देखिए यहाँ से मैंने कर लिया। यहाँ ये आपका एक सिंपल मेथड हो गया कि आपने इस फॉन्ट साइज के बटन से आपने उसका साइज चेंज कर लिया। बट इफ यू वांट द अदर ऑप्शन, अगर आपको दूसरा ऑप्शन है तो वो आपका ये है, ये देखिए दिस इज द इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड दिस इज डिक्रीज। मैं अगर इसको और बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं क्लिक करूंगी इंक्रीज पे, देखिए ये बढ़ता जा रहा है इसका साइज। और अगर मैं इसको डिक्रीज करना चाहती हूँ देन मैं आई हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन, मेरे को यहाँ से क्लिक करना है। तो देखिए ये इसका साइज जो है वो कम होता जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉन्ट साइज, हाउ you change the increase or decrease the size of the font. The next one is to apply shadow effect. अब देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है and now I want to apply the shadow effect on this text. तो शेडो आपको पता ही है कि शेडो किस तरह का इफेक्ट आता है, आपके पीछे एक शेडो आएगी। तो दिस इज द शेडो इफेक्ट इन द फॉन्ट ग्रुप ऑल्सो। फॉन्ट ग्रुप में ही आपको शेडो इफेक्ट दिख जाएगा। आपका टेक्स्ट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है आपने शेडो इफेक्ट पे अप्लाई किया एंड लुक एट दिस, आपका शेडो इफेक्ट यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज आपका जो फिल जो है शेडो आपको पता है ब्लैक कलर की होती है। तो मैं ये देखिए मैंने अब व्हाइट कलर के शेडो इफेक्ट मैंने दिया था उसमें, तो वो आ गया, अब शेडो इफेक्ट आ रहे हैं। तो जो बाकी के दो थे वो, चलिए मैं एक काम करती हूँ दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए देखिए, तो दिख रहा है आपको एक शेडो इफेक्ट इसमें शो हो रहा है, पीछे इसका शेडो इफेक्ट आ रहा है। तो ये चीज आपकी सिलेक्टेड है, इस पे शेडो इफेक्ट अप्लाई हो गया। सो नेक्स्ट वन इज हाउ टू अप्लाई फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल्स आपके पास जो हैं वो ये हैं, लुक एट दिस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, दिस इज द फॉन्ट स्टाइल। हाउ यू चेंज द फॉन्ट स्टाइल। अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं देन क्लिक ऑन दिस, देखिए बोल्ड हो गया। इटैलिक में करना चाहते हैं देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस इटैलिक। अंडरलाइन करना चाहते हैं देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस अंडरलाइन ऑप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉन्ट स्टाइल and the last but not the least, to copy the formatted text effect to another selection। ये बहुत important है कि अगर आपने जो जो चीजें इसके ऊपर आपने देखो, आपने इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई की, इसको बोल्ड किया, इस पे शेडो इफेक्ट अप्लाई किया, इस पे आपने अंडरलाइन किया, इसे इटैलिक किया, तो इसका साइज इंक्रीज किया, इसका फॉन्ट फेस चेंज किया, सब कुछ आपने इस पे अप्लाई किया, बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स आपने अप्लाई किया। अब आपने देखा कि आपके जो ऊपर वाले जो दो थे इस पे कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है। तो आपके पास एक शॉर्टकट है कि आपको पता नहीं चलता आपने क्या क्या चीजें इस पे अप्लाई की हैं। तो एक आपके पास फॉर्मेट पेंटर,
का ऑप्शन है, ये देखिए आपने इसको सिलेक्ट किया, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट पेंटर बटन। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका एक पेंट का ब्रश की तरह का आपका कर्सर जो वो चेंज हो जाएगा। देखिए आपका जो ब्रश है वो पेंट, ये जो कर्सर था वो पेंट ब्रश में चेंज हो गया है। तो अब आपने करना क्या है, यू हैव टू सिलेक्ट दिस, आपने इसको सिलेक्ट किया एंड देन देखिए क्या हुआ, मैंने कोई अप्लाई नहीं की फॉर्मेटिंग, उससे ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेटिंग आपकी इस पे अप्लाई हुई थी वो यहाँ पे भी चेंज हो गई है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी easy way. So thank you students.